Good morning, class 5th. This is your GK period. Take out your GK book and your pencil. Today we will do the first chapter of your GK book, that is Earth and Above. You have to take out page number 1. And now we will solve this crossword puzzle. Do you know how to solve a crossword puzzle? You have two options. On the one side it is written across and on the other side it is written down. So when you are solving the puzzles for across, you have to write answers in the across manner. This is the across, means horizontal. Alright, and when you are solving the puzzle for down, you have to write the answers in the vertical manner, in the downward direction, like this. Okay, so now we will start solving the puzzle. I will also explain you the related things with the question. I want you to do the questions along with me. So let's start. The first one I am starting doing from the across one. So the first one that I am doing is an object from outer space, such as a rock that falls into the earth and lands on its surface. It is, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस से एक पत्थर की तरह, एक रॉक की तरह अर्थ पे गिरता है और उसकी सरफेस पे लैंड करता है? विच इज़ दैट ऑब्जेक्ट? that object is meteorite. So we will write on the third number. This is third. I will write on the third number meteorite. 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 क्या होते हैं meteorite? meteorite वो ऑब्जेक्ट है, पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस से अर्थ पे गिरते हैं. Alright, write it down. Now next is 5th, March 21 and September 22. Do you know what is special about these 2 days? Do you know what is special about these 2 days? These 2 days are known as equinox. What is it known as? Equinox. Why these 2 days are known as equinox? Because see, this is our earth. This is our earth. And this is the center line of our earth. ये हमारे अर्थ की सेंटर लाइन है, से पूरी गोल. This line is known as equator. What is it known as? It is known as equator. This is the hottest line. Why this is the hottest line? Because it is closest to the sun. That is why this is the hottest line on earth. Now, on these 2 days, on March 21 and on September 22, what happens? Our earth is constantly rotating and revolving. You know, rotating means it is always rotating on its axis, like this. And it is always revolving around the sun also. sun के आसपास भी घूमती रहती है. So घूमते घूमते ऐसे 2 दिन पे क्या होता है कि अर्थ का जो इक्वेटर है वो बिल्कुल सन के ऊपर आ जाता है, सन के मिडिल के बिल्कुल ऊपर आ जाता है इन 2 दिनों पे. तो ऐसे 2 दिनों में जो डे टाइम और नाइट टाइम होता है बिल्कुल इक्वल लेंथ का होता है. जितनी देर का डे होता है उतनी ही देर की नाइट होती है. That is why these 2 days are known as equinox. So for March 21 and September 22, we will write equinox on point number 5. All right. E Q U I N O X. E Q U I N O X. Now 7th, study of earth using physics. अर्थ के बारे में पढ़ना फिजिक्स के थ्रू. क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं जियोफिजिक्स. क्या बोलते हैं? जियोफिजिक्स. सो वी विल राइट जियोफिजिक्स ऑन 7th number in the across direction.
So GEO, geo, PHYSICS, geo, physics. This is known as study of earth using physics. Now we have completed our across section. Now we will move towards the downward direction. Now in the down column, the first one is when the moon is more than half full but less than completely full. Now see children, जब आप अपने टेरेस पे जाते हो, बाहर जाते हो, रात हो जाती है, तो आपने देखा होगा जब मून आता है, कभी कभी तो पूरा मून आ जाता है ऐसे, कभी कभी आपको फुल मून दिखता है, फिर मून छोटा होना स्टार्ट कर देता है, ऐसा हो जाता है ना? उसके बाद बिल्कुल हाफ हो जाता है और फिर बिल्कुल छोटा सा ऐसा हो जाता है और फिर एक दिन गायब हो जाता है, फिर दोबारा ऐसे स्टार्ट होता है, इतना होता है, इतना होता है, फुल मून होता है। तो मून अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है। तो ये जब पूरा मून आता है इसे तो हम बोलते हैं फुल मून। फिर जब हमारा मून थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यानी आधे से ज़्यादा है लेकिन पूरे से कम है, इसे हम बोलते हैं गिब्बियस मून। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट गिब्बियस मून। फिर जब आधा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? हाफ मून। और जब बिल्कुल छोटा सा हो जाता है देन वी कॉल इट क्रेसेंट मून। दीज आर द 4 phases ऑफ मून। नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज व्हेन द मून इज मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा, बट लेस देन फुल, लेकिन फुल से कम, तो कौन सा मून है ये? गिब्बियस मून। विल राइट GIBBOUNC, S इज ऑलरेडी देयर। अगर यहाँ पे S ना होता तो हम समझ जाते या तो इसमें कुछ गलती है या फिर इस वाले में कुछ गलती है। ऑल राइट, सो वी हैव डन फर्स्ट वन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड, रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको पता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के आसपास जितनी भी हवा ने हमें सराउंड कर रखा है, ये सब क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं दैट यू हैव ऑलरेडी read or you will be reading in your EVS book soon. So there are different layers. So here we will write, which layer we will write? We will write troposphere. Children, see, while doing the puzzle, I observed that there is one block missing. So you have to draw one block. There is one mistake in this crossword. There is one block missing. So just draw one block and write down troposphere. TROPOSPHERE. So this is troposphere. All right, have you written? This is one of the layer of atmosphere. देखो जैसे जैसे मैं लिख रही थी, आई वॉज गेटिंग द करेक्ट आंसर्स इटसेल्फ। जो हमने पहले भरे हुए वो अपने आप मैच हो रहे थे, है ना? इट मीन्स वी आर डूइंग इट करेक्टली। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, अ शूटिंग स्टार। एक शूटिंग स्टार ऑब्जर्व्ड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? जब अर्थ एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स एंटर करते हैं। ऐसे शूटिंग स्टार ऐसे चमकता हुआ हमें दिखता है, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं ना, उसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी कॉल इट मिटियोर। व्हाट डू वी कॉल इट? मिटियोर। ME ऑन द फोर्थ वन आई एम राइटिंग METEORS, मिटियोर्स written. Next, sixth, number of planets in solar system. How many planets are there? There are 8 planets. What are they? They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Earlier there was one more planet, Pluto, but अब वो इतना छोटा हो गया है कि उससे एक planet की counting में नहीं लिया जाता है, and it is known as dwarf planet. So now there are 8 planets. In the 6th I'm writing I is already there. GHT, 8. 7th, a group of stars, gas, dust, सारी चीज़ों का ग्रुप हमारे ऊपर, ये जितनी भी चीज़ें इसे ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा हुआ है ना,
वरना आसमान हमारे ऊपर नहीं गिर रहा, तारे हमारे ऊपर नहीं गिर रहे, कुछ भी हमारे ऊपर गिर नहीं रहा है, सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है ग्रेविटी ने। तो ऐसा इस सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस सब के ग्रुप को बोलते हैं गैलेक्सी। व्हाट डू वी कॉल इट? गैलेक्सी। G is already there, LAXY. In which galaxy do we live? We live in Milky Way galaxy. In which galaxy do we live? We live in Milky Way galaxy. So note it down, children. Then we will start page number 2. Come to page number 2. The first question, your second chapter is about space. We will study about space. This is a little difficult chapter, but it will increase your knowledge very much. So just do it with me, and then you have to learn it also. So there are some helps given here in the box. We will use these helps to fill in these answers. First of all, I'll read the quick facts for you. The first fact is Laika the dog. Laika एक dog है. ये पहला living creature था जो कि space में गया था. You know, the first creature that stepped into the space was a dog. And what was the name of the dog? The name of the dog was Laika. It takes 3 days to travel from Earth to Moon. अगर आपको अर्थ से मून पे जाना है, अगर आप एस्ट्रोनॉट बनोगे बड़े होके और आप मून पे जाओगे तो कितने दिन लगेंगे आपको? It will take you 3 days to travel from Earth to space. Now with the help of these few hints we will solve this question. How many planets revolve around the sun? सन के आसपास मैंने अभी आपको बताया कितने planets revolve करते हैं? 8 planets revolve around the sun. How many planets? 8. So I'm cutting this option 8 from here and I'm writing 8. Also in words and also in figures. 8 planets revolve around the sun. Number 2 is, how many miles are there in a light year? एक लाइट ईयर में कितने माइल्स होते हैं? एक लाइट ईयर क्या होता है आपको पता है? जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या आपको घंटाघर जाना है, पलटन बाजार जाना है, सो आप क्या बोलोगे? कितना किलोमीटर जा रहे हो आप, है ना? किलोमीटर में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं. वैसे ही जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है? लाइट ईयर में. क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है कि उसे आप किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसे लाइट ईयर में मेजर किया जाता है. सो एक लाइट ईयर में कितने माइल्स होते हैं? देयर आर 6 trillion miles in a light year. 6 trillion miles. Now, who was the first human to journey into outer space? Space में जाने वाला पहला इंसान कौन था आपको पता है? The first person who went to the space was यूरी गैगरिन. पर यूरी गैगरिन से पहले भी कौन गया था? एक डॉगी जिसका नाम क्या था? लायरा. So write down Yuri Gagarin was the first man who went into the space. ऊपर आसमान में. स्पेस क्या है? आसमान, जहाँ पे सारे प्लैनेट्स है, सन है, मून है, स्टार्स है, अर्थ भी स्पेस में ही है. उधर गए थे यूरी गैगरिन. Who was the first astronaut to walk on the surface of the moon? मून की सरफेस पे चलने वाले पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे? मून पे चलने वाले पता है आपको? द फर्स्ट मैन हु वॉकड ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. हु वॉज ही? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. अब आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉकड ऑन द सरफेस ऑफ मून. विच कंट्री बिल्ड द फर्स्ट स्पेस स्टेशन? कौन सी कंट्री ने सबसे पहला स्पेस स्टेशन बनाया था जहाँ पे स्पेस पे जाने के बारे में रिसर्च होते थे, जहाँ से स्पेस की सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी स्पेस के बारे में? वो कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहला फर्स्ट स्पेस स्टेशन बनाया था? इंडिया का स्पेस स्टेशन पता है आपको? विच इज द स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया? इट्स इसरो. पता है आपको? इसरो ही है ना जो बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे
और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो आगे चल के इसरो में काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विच कंट्री बिल्ड द फर्स्ट स्पेस स्टेशन? सबसे पहला स्पेस स्टेशन किसने बनाया था? सोवियत यूनियन। विच कंट्री बिल्ड इट? सोवियत यूनियन। सो विल राइट SOVIET, यूनियन। ये एक यूनियन थी कुछ कंट्रीज की, फिर बाद में सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई थी और ये यूनियन बंद हो गई थी। विच वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप? टेलीस्कोप से सबसे पहले कौन सा प्लैनेट दिखा था? इट वॉज यूरेनस। यूरेनस वॉज द फर्स्ट प्लैनेट विच वॉज सीन थ्रू द telescope. Uranus was the first planet to be seen through the telescope. What is the name of the first spacecraft? सबसे पहली spacecraft. Spacecraft क्या होता है? वो जो रॉकेट देखा ना आपने ऊपर जाता है स्पेस में, वही होती है spacecraft. तो वो कौन सा पहला spacecraft था जो कि मून पे भेजा गया था? क्या नाम था उस spacecraft का? उस spacecraft का नाम था Luna 9. What was its name? Luna 9. What was its name? Luna 9. Next, in which galaxy is Earth located? मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम सब एक गैलेक्सी में रहते हैं और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। What is the name of the first spacecraft? वो पहली spacecraft कौन सी थी जिसमें एक ह्यूमन गया था? एक ह्यूमन बैठ के गया था, वो थी वोस्टक 1। वोस्टक 1। Now last question is, who was the first woman to enter space? स्पेस में जाने वाली पहली वुमन कौन थी? वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। Who was she? Write down. Valentina. See the spelling from here. Tereshkova. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जो कि स्पेस में गई थी। इंडिया से फर्स्ट वुमेन कौन गई थी स्पेस में, पता है आपको? शी वॉज द फर्स्ट वुमेन कल्पना चावला। लेकिन जब ये वापस आ रही थी तो क्या हुआ था? इनका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था एंड शी डाइड, बट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु वेंट टू द स्पेस फ्रॉम इंडिया। नाउ चिल्ड्रन, note it down everyone. Then we'll come to the next chapter. Completed. Come to page number 3, children. Now we have to match these columns. So I'm going to read column B for you and then we will guess कि इसे किससे match करना है. Alright. So I'm starting reading. This is about heavenly bodies. What are heavenly bodies? What are heavenly bodies? हेवनली बॉडीज वो सारी बॉडीज है जो सोलर सिस्टम में पाई जाती है, स्पेस में पाई जाती है। वो सारी बॉडीज है, हमारे प्लैनेट्स है, जैसे स्टार्स है, मून है, ये सब क्या है? ये सब हेवनली बॉडीज है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में स्टार कौन सा है पता है आपको? बाकी सारे तो प्लैनेट्स है, स्टार कौन सा है? सन। सन इज द स्टार in our solar system. Then planet closest to earth. earth के closest planet पता है कौन सा है आपको? ये हमारा solar system है, this is sun. Then यहाँ पे कौन सा planet है? Mercury. Then Venus. Then earth. Then Mars. फिर सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। फिर सबसे सुंदर प्लैनेट सैटर्न, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिंग है। देन यूरेनस एंड देन नेपट्यून। तो अर्थ के सबसे पास या तो वीनस हो सकता है या मार्स, लेकिन मार्स का डिस्टेंस अर्थ से थोड़ा ज्यादा है। वीनस वो प्लैनेट है जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है। The planet closest to Earth is Venus.
प्लैनेट विद लाइफ, 8 के 8 प्लैनेट्स में से एक ही प्लैनेट है जिसमें लोग रहते हैं। वो कौन सा प्लैनेट है? हम रहते हैं ना अर्थ में, तो हमारे प्लैनेट में ही लाइफ है मतलब। तो प्लैनेट विद लाइफ कौन सा हुआ? अर्थ। प्लैनेट विद मोस्ट विजिबल रिंग्स, सबसे ज्यादा रिंग्स कौन से प्लैनेट में है? अभी मैंने आपको बताया ना इसमें कि सैटर्न जो है वो सबसे सुंदर प्लैनेट है। क्यों है सबसे सुंदर? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिंग्स है, इसलिए वो सबसे सुंदर लगता है। सो सैटर्न इज द प्लैनेट विद मोस्ट विजिबल रिंग्स। होम गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, तीनों चैप्टर में पढ़ लिया हमने। स्मॉल इरेगुलर प्लैनेट, कुछ ना हमारे सोलर सिस्टम में से छोटे 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 प्लैनेट्स है जो एक्चुअली में प्लैनेट नहीं है लेकिन प्लैनेट जैसी है, पर वो बहुत छोटे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। व्हाट डू वी कॉल देम? एस्ट्रॉइड्स। सो दीज आर स्मॉल इरेगुलर प्लैनेट्स। रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं जानते हो आप? मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि उसका कलर रेड है। क्यों है उसका कलर रेड? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ रेड सॉइल एंड लॉट ऑफ आयरन, दैट इज वाई मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट? जुपिटर, बहुत बड़ा है जुपिटर। डार्क पैचेस नोटिस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सन, सन की सरफेस पे डार्क डार्क स्पॉट्स है, तो क्या बोलेंगे इसे? सन स्पॉट्स। वेरी इजी। ग्रुप ऑफ स्टार्स, जब कुछ स्टार्स इकट्ठे होकर एक शेप बना लेते हैं, बहुत सारे स्टार्स एक शेप बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। जैसे एक सबसे कॉमन कॉन्स्टिलेशन कौन सा है? सप्तऋषि। ऐसे शेप होती है उसकी, एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 5 6 7। ये स्टार ने एक शेप बना ली ना 7 स्टार्स ने मिलके, तो इसे क्या बोलते हैं? जब भी आप ऊपर आसमान में कभी देखना, आपको स्टार्स की अलग अलग शेप्स दिखेगी, तो उनमें से सबसे कॉमन शेप ही होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसमें 7 स्टार्स है इसलिए बोलते हैं इसे सप्त ऋषि। सो दिस इज नोन एज, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक शेप, एक फॉर्मेशन ले लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? कॉन्स्टिलेशन। नाउ वी विल डू सम ट्रू एंड फॉल्स। The approximate diameter of the earth is 12,760 किलोमीटर। क्या इतना बड़ा रिंग है अर्थ का? डायमीटर मतलब पूरा सर्कल कितना बड़ा है अर्थ का? इतना ही है, so it is true. Jupiter has the highest number of moons. मून क्या है आपको पता है? मून है सैटेलाइट होती है। व्हाट इज मून? मून इज द सैटेलाइट। जैसे अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, मून दिखता है ना हमें, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? अर्थ की सैटेलाइट। ऐसे ही जो जुपिटर है और सैटर्न है, उनके आसपास कितने मून्स घूमते हैं पता है आपको? हाउ मेनी मून्स? जुपिटर के आसपास घूमते हैं 79 मून्स और सैटर्न के आसपास घूमते हैं 82 मून्स। ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट होती है। जैसे अब तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी स्पेस में भेजी जाती है, लेकिन जो नेचुरली हमारे आसपास घूम रहे, पहले से ह्यूमंस ने बना के नहीं भेजी है, उसे मून बोलते हैं। तो जो सैटेलाइट हमारे आसपास घूम रही है नेचुरली, वो मून है। हमारा सिर्फ एक ही मून है, अर्थ के पास एक ही मून है, पर जुपिटर के पास कितने मून्स है? 79। और सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स है, जो कि है 82 मून्स। सो दिस इज फॉल्स, बिकॉज जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून्स नहीं है। पहले जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून्स थे, लेकिन अब पिछले साल जब दोबारा से रिसर्च हुई तो ये देखा गया कि अब सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स है। मरकरी इज द डेंसेस्ट प्लैनेट। डेंसेस्ट मतलब सबसे भारी प्लैनेट, देखो जो चीज पानी पे फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है, यानी वो उतनी कम डेंस है, ठीक है, और जो पानी में डूब जाएगी वो उतनी ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। तो अर्थ वो प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा डेंस है। तो सैटर्न, मरकरी नहीं है सबसे ज्यादा डेंस। कौन सा सबसे ज्यादा डेंसेस्ट प्लैनेट? अर्थ। और सबसे कम डेंसेस्ट कौन सा है? सैटर्न। उसकी डेंसिटी इतनी कम है दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, कि वो पानी में तैर सकता है, इतनी कम उसमें डेंसिटी है। सो मरकरी, दिस इज रॉन्ग बिकॉज अर्थ इज द मोस्ट डेंस प्लैनेट।
वीनस हैज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन. रोटेशन मतलब मैंने आपको बताया ना, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे गोल गोल, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है. ठीक है, हमारे रोटेशन में, अर्थ के रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. तभी तो एक दिन और एक रात होती है ना. तो अर्थ के रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन वीनस के रोटेशन में कितने दिन लगते हैं? 243 डेज लगते हैं. 243 डेज में वो एक रोटेशन कवर करता है ऐसे. ओके, सो दिस इज ट्रू. Neptune's atmosphere is blue, poisonous and is composed of methane. क्या नेपच्यून का एटमॉस्फेयर ब्लू है, जहरीला है और मीथेन से बना है? नेपच्यून में मीथेन गैस तो होती है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर पॉइजनस नहीं है. पॉइजनस एटमॉस्फेयर किसका है? वीनस का. इट इज वेरी पॉइजनस. सो दिस इज फॉल्स. ऑलराइट चिल्ड्रन, now I'll read some quick facts for you. सैटर्न का मैंने आपको बता दिया, उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि वो पानी में फ्लोट कर सकता है. और आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो ये कि जो एस्ट्रोनॉट जब वो स्पेस में जाते हैं तो उनकी जो हाइट होती है, उनकी हाइट 2 इंचेस बढ़ जाती है अपने आप. सो जो हाइट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स है, इट इंक्रीजेस बाय 2 इंचेस व्हेन दे आर इन स्पेस. डू यू नो दैट? It is interesting. Very good. Now children, we have completed 3 very very interesting chapters of GK. Number 1, earth and above. Number 2, space. And number 3, heavenly bodies. Now you have to do it, and children, you also have to learn it. Okay, because these are very informative chapters. Okay children, take care. Bye bye. See you again, and then we will continue our more chapters.